इग्नू में गए दिल्ली, और वहाँ पर भी इन्होंने कई वर्ष वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात प्रोफेसर अस्थाना बीएचयू में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि इनका जो शोध कार्य था वो बहुत ही उच्च स्तरीय था। तो वहाँ पर वर्तमान में ये वहीं पर अपनी विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सर, आपके मनोविज्ञान में योगदान को शब्दों में हम सीमित नहीं कर सकते हैं, और आप मनोविज्ञान विषय के न्यूरोसाइकोलॉजी ब्रांच में अपना शोध कार्य कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस विषय पर प्रोफेसर अस्थाना जी अपने विचार रखेंगे वो है फैक्टर एनालिसिस, जो कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और इवन टीचर्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसपे कि उसकी डेप्थ न होने के कारण, उसकी गहराई की जानकारी न होने के कारण हम लोग उसका प्रयोग तो कर लेते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो यदि हमारे जितने भी विद्यार्थी इस विषय में अपने शोध कार्य में या अपने रिसर्च पेपर के लिए फैक्टर एनालिसिस का यूज कर रहे हैं, तो सर का जो आज व्याख्यान होगा वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपका स्वागत है सर पुनः, और आशा है कि हमारे विद्यार्थी आपके व्याख्यान से बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। स्वागत है सर आपका। जी सर। Very good morning to all of you. And first of all, I would like to give my sincere thanks to Professor Madhu Nayal, Head Department of Psychology, SSJ Campus Almora, for giving me an opportunity to discuss to you people, because I believe that a teacher always learns, and everybody is learner and everybody is teacher. So I always try to learn something from every lecture. So I hope whatever I will share with you, it is up to you people that to what extent I can share, but certainly I will learn something from you people also. And it's a great pleasure for me, because as Madam has told, I have been associated with SSJ Campus Almora. So personally, I feel that yes, I am still to some extent deeply personally associated with SSJ Campus Almora. So it is my second home, I can say. So it is her affection and respect and love that she has called me. So I'm once again very much thankful to the entire organizing team of the 10 days workshop for giving me an opportunity to discuss with you. With these words, I begin my discussion, the factor analysis. My screen is visible or not? Screen हमारी दिख रही है? Yes sir, it is visible. अच्छा अच्छा ठीक। सो एज और हम ट्राई करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश करेंगे, कि जिससे आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ जाएं, और कहीं पर अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इवन इन द बिटवीन द लेक्चर. So first of all, I would like to explain that factor analysis is one of the very important statistical tool, especially in the field of psychology. Why? Because if you want to learn anything, if you want to do anything, you should have a very strong motive or a strong need. Why? As strong as will be your why, you will be able to achieve your goal. So before I begin the fundamental concepts of the factor analysis, you should know why. So as you know, the correlation coefficient or the correlation is a very
very popular statistics in psychology or even in social sciences, behavioral sciences. But the thing is that when we calculate the correlation between two variable or more than two variable, very easily and very casually we attribute that one is a cause and other is a fact. हम लोग बहुत आसानी से अगर दो वेरिएबल या के बीच अगर कोरिलेशन आ गया तो एक को कॉज और इफेक्ट के रूप में कर दे. बट द फैक्ट इज डिफरेंट. Fact is that they are only correlated, they have association. They are always a third variable or other variable that is explaining the relationship, that is mediating the relationship, that we rarely try to explore. उसको हम explore करने की कोशिश कम करते. So factor analysis is a technique through which you can identify the factor which is mediating the correlation between two or more than two variables. So this is the very simple logic why we want to calculate or why we want to calculate the factor analysis. So factor analysis is a technique to extract the factors from the variable, because there are so many variables, multiple variables are working, and now you have to find out which factors are mediating this kind of relationship. ये relationship किस factors की वजह से आ रहा है, कौन कौन से factors आ रहे हैं. तो factor analysis क्या है? ये variable को reduce करता है. It's a reduction technique. Reduces the set of variable which are mediating. And factor analysis is also, as I have discussed earlier, is based on the correlational method. ये एक correlational method ही है. So common example, ठीक है ना. There are basically two types of factor analysis, basically, which is more commonly used. One is the exploratory factor analysis, and other one is a confirmatory factor analysis. So exploratory factor analysis is also known as data reduction technique, because its outcome, its result, इसका जो result है, is based on to choose the smaller set of variable. जो बहुत ज्यादा set of variable है, मान लीजिए आप 10, 20, 30 variables use कर रहे हैं, उसको आप कैसे reduce कर सकते हैं. मान लीजिए उसमें से जो important variable मिले, जिसका contribution है, वो केवल हो सकता है 4 या 5 variable का हो. तो instead of using 20, 30 variable, investing the time, and वे कहीं ना कहीं से आपके डेटा को मैनिपुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जिसके इफेक्ट को आप नहीं देखना चाहते. तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या है? ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उनको रिड्यूस करके आपको एक ऐसे वेरिएबल्स की लिस्ट दे देता है, या ऐसे वेरिएबल्स के आपको ग्रुप मिलता है जिनका की रियल आपके डिपेंडेंट मेजर या जो आपका आउटकम है उसको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. सो इसलिए जो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होता है. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द फैक्टर स्ट्रक्चर अंडरलाइंग द वेरिएबल्स. उस वेरिएबल से बीच में कौन कौन से फैक्टर स्ट्रक्चर इमर्ज कर रहे हैं, उनको ही ये आइडेंटिफाई करता है. So it also provides a large amount of information which the researcher can use to specify the factors. So it is not the inferential test of significance. Exploratory factor analysis. For the hypothesis testing, generally we use confirmatory factor analysis. So hypothesis about the number of factors can be tested
by using this confirmatory factor analysis. Now, because why I am going to some speedy way, because factor analysis is a very vast topic. In order to have a proper understanding of these things, at least 3-4 hours continuously required. So, but what are the major points? What are the important points? And at least I will try that after listening my lecture, at least it is you may ignite, and it will generate a curiosity to know much more about the concept and the uses of the factor analysis. This is my only objective, just to create a curiosity, just to give an idea, so that you will be motivated to learn about the factor analysis. Okay? Nothing more than that. This is my objective of the lecture. So now come to the what are the basic assumptions, because हम जब कोई statistics कर रहे हैं आजकल भी, तो assumptions तो you can very honestly I can say many of us may not aware even what are the assumptions, and if someone is aware about the assumptions, very few of them go to test whether data fulfill the assumptions or not. But in a true sense, it is an ethical point of view, or from the scientific literature point of view, whatever statistics you are going to apply on your data, first of all, you should test whether your data fulfill the assumptions or not. बिकॉज एजम्पशंस जो होते हैं ये मान करके उस पर पॉस्टुलेट जिसको बोला जाता है, ये मान के चलते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. अब जैसे हम आपको फैक्टर एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, तो हम बहुत सी चीजें मान लिए हैं एजम्पशंस, और अगर वे हमारी एजम्पशंस गलत साबित हुई तो हमारा ये पूरा लेक्चर बेकार हो गया. एजम्पशंस क्या हम मान लिए? हमने ये मान लिया कि आपको स्टैटिस्टिक्स क्या है ये जानते हैं. हमने ये भी मान लिया कि आपको डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये भी मालूम है. हमने ये भी मान लिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से टाइप्स है, इन्फ्रेंशियल के कौन कौन से है, तो पैरामीट्रिक क्या है, नॉन 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 पैरामीट्रिक क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ऐसे बहुत सारे, जैसे एनपीसी क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व्स के एजम्पशंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं. तो ऐसी बहुत सारी एजम्पशंस हमने बना लिया कि आपको ये सब मालूम है. उस एजम्पशंस को हम आगे मान करके ये चीजें हम पढ़ा रहे हैं. तो अगर वे गलत साबित हो गए तो ये लेक्चर का कोई मतलब नहीं होगा. तो जस्ट ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिए कि assumptions आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट assumptions in order to conduct a factor analysis, that variables should be at least interval or ratio level. जो आपके मेजर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वे इंटरवल या रेशियो लेवल पे हो, नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पर ना हो. I hope, I assume that all of you know the 4 different levels of scaling: nominal, ordinal, interval and ratio. अगर ये इंटरवल या रेशियो पे नहीं होगा तब आपको फैक्टर एनालिसिस रन नहीं करना. वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो आप वेरिएबल्स जो लिए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको चेक करना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली नॉर्मली नहीं है, अगर स्क्यूड है तो वे कितने लेवल तक स्क्यूड है. ऐसा तो नहीं कि एकदम सिग्निफिकेंटली स्क्यूड हो गए, ये आपको चेक करना चाहिए. थर्ड assumption that relationship between the variables should be linear. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब अगर जितना एक में कम हो रहा है उतनी उस एक अमाउंट से ही उसमें चेंजेस हो. ऐसा नहीं कि कभी मान लीजिए आपने 2
2 यूनिट एक में चेंज हुआ तो कभी वे 4 यूनिट चेंज हो गया, और कभी वे 2 यूनिट कम हो गया, कभी 4 यूनिट बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके के रिलेशनशिप अगर वेरिएबल में होंगे तो उनको आप लीनियर नहीं कहते। लीनियर रिलेशनशिप मीन्स इन एक यूनिफॉर्मिटी के साथ उसको इन्फ्लुएंस करना। And the fourth assumption, which is also very important, that number of participants is very important. At least 100 participants, और इवन इस पे सैंपल साइज के लिए काफी कुछ स्टडी हुई है। 100 मिनिमम बोलते हैं, कुछ लोग बोले 200 या 200 से ज्यादा आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर इसमें क्लाइन ने एक सजेशन दिया कि 2:1 का रेशियो होना चाहिए, कि जितने उसमें वेरिएबल्स हो एटलीस्ट उसके जस्ट डबल सब्जेक्ट हो। सपोज करिए कि एक कोई क्वेश्चनियर है दैट कंटेन्स 60 आइटम, then at least 120 participants must be there. Other researchers have suggested that its minimum ratio will be 20:1. So truly exploratory analysis, we don't have how many factors there will be. So that's why some have suggested 20:1. But on an average or on the whole, the sample size should be 200 or more than 200 is almost acceptable. So these were the certain basic assumptions of factor analysis. If you have any doubt up to that extent, you can ask me, or may I go ahead? आगे बढ़े? Yes, sir. अच्छा अच्छा. Now before I discuss the steps and other things, there are certain concepts. That concept must be very clear to you people so that you can understand the analysis of the factor analysis. जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है फैक्टर एनालिसिस, तो आपको जानना चाहिए व्हाट इज फैक्टर. सो कंपोनेंट एंड फैक्टर मींस द रियल फैक्टर्स, they are derived directly from the correlational matrix. जो correlation matrix बनाया जाएगा उसमें से जो फैक्टर इमर्ज करेंगे, कौन कौन से फैक्टर है जो इस वेरिएबल को लीड कर रहे हैं. इसके पहले एक हम कॉन्सेप्ट बता दें. आप लोग इनोवा वगैरह और भी स्टैटिस्टिक्स आप काफी पढ़े होंगे. पूरा जो एनालिसिस है, ये जो इन्फरेंशियल की बात करें तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएंस. ओके, वेरिएंस ऑफ व्हाट? It is ideally conditioned. In ideal condition, it is assumed that the variance or the variation in the dependent variable is just because of independent variable. बात आगे समझ में कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस हो रहा है वे केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है. मान लीजिए जो चेंजेस हुआ उसको आप 100% मान लीजिए, तो 100% जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है वह केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने की वजह से या वेरिएशन से हो रहा है. ये आइडियल कंडीशन. लेकिन आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, एज ऑल ऑफ अस नो. सो द ट्रू एक्चुअल जो टोटल वेरिएंस कंसिस्ट ऑफ true variance and error variance. True variance means exact that what amount of variance is carried out by the independent variable, and what variance is error variance. Error variance में बहुत सारे factors आ जाते हैं, जिसमें आपके मेजर्स, आपके सैंपल सिलेक्शन की बात आ गई, सब्जेक्ट रिलेटेड बात आ गई, बहुत सारे जिसको आप उसमें से कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. ये सब डिजाइन का पार्ट है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट एटलीस्ट यू शुड नो द वेरिएंस. लेकिन कर्लिंगर ने एक वर्ड यूज किया है डिजाइन के समय, मैक्सिमिकॉन. हैव यू हर्ड दिस नेम? Have you heard this term, Maximicon?
No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, डिजाइन में मैक्सिमिकॉन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है। तो इसमें मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमैटिक वेरिएंस। सिस्टमैटिक वेरिएंस क्या है कि इंडिपेंडेंट, आपका उद्देश्य यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस हो उसका पूरा इफेक्ट आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पर मिले। तो मैक्स का मतलब हुआ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमैटिक वेरिएंस, मी का हुआ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, एंड सी का मतलब हुआ कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस एंड कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स को आपको कम से कम करना पड़ता है क्योंकि ये आपके काम की चीज नहीं है, ये एरर होते हैं। मैक्सिमम आपको जो सिस्टमेटिक वेरिएंस है उसको मैक्सिमाइज करना। बात आगे सुनना। तो यहां पर ये जो फैक्टर की बात हम करते हैं, फैक्टर ये बताता है कि कौन कौन से फैक्टर कितना वेरिएंस लीड कर रहे हैं। जो फैक्टर जितना वेरिएंस लीड करेगा उसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये फैक्टर एनालिसिस से पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं, ये बहुत इससे फिट नहीं बैठेगा लेकिन समझ में आ गया। मान लीजिए एक ग्रुप में 10 लोग काम कर रहे हैं मिल करके। अगर ऐसे किसी से पूछा जाए तो सभी लोग बताएंगे भाई सभी लोग बराबर काम कर रहे हैं, सबका रोल बराबर है, सभी इंपॉर्टेंट लोग काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब अगर आपके पास कोई ऐसा मेजर हो, कोई ऐसा आपके पास टेक्निक हो जिसमें आप ये कैलकुलेट कर सके, तो पता चलेगा कि एक एक आदमी उसमें ऐसा है जो 70 to 80% काम को कर रहा है इसको, और कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो केवल एग्जिस्टेंस रहेगा, 1-2% काम करेंगे। बात आगे समझ में। तो फैक्टर, हाँ तो फैक्टर जो आप टेक्निक पढ़ रहे हैं फैक्टर एनालिसिस, ये ऐसे ही है कि आपके पास ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं। अभी आपको पता चल रहा है कि सबका बराबर बराबर रोल है, लेकिन जब आप फैक्टर एनालिसिस कर लेंगे, फैक्टर पता चल जाएगा, तब आप बता देंगे कि इस फैक्टर का इतना परसेंट रोल है, इस फैक्टर का इतना परसेंट है, इस फैक्टर का इतना है, 3 ही है, बाकी बाकी आपके रिडंडेंट है, इनका कोई वैल्यू इसमें नहीं है, खाली आप स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। ये फैक्टर, हाँ इसको फैक्टर बोलते हैं। अब एक वर्ड है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड। ये प्रोसेस है कि कैसे आप फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे आप फैक्टर को निकालते हैं, ये एक यूज होगा वर्ड। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कम्युनलिटी। कम्युनलिटी ये बताता है how much variance in the data from a particular variable is explained by the analysis. So this gives an idea that how much variance is carried out by this variable or this factor. So this is the community. Eigenvalue. Eigenvalue is a statistical term that gives an idea that how much variance in the data is explained by a single factor, or higher the value, more the variance is explained by the factor. आइगन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वे उतना ज्यादा वेरिएंस को लीड करेगा। तो नॉर्मली जब हम SPSS यूज करते हैं तो ये देखते हैं कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है आइगन वैल्यू की 1 को मानते हैं, उससे 1 या 1 से ऊपर आइगन वैल्यू वाले फैक्टर को रखते हैं और उससे नीचे वाले को हम छोड़ देते हैं। जैसे आप नॉर्मली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं 0.05, 0.01, अगर 0.05 पर भी नहीं हुआ तो आप उसको नॉन सिग्निफिकेंस करके छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जब आइगन वैल्यू की बात करते हैं तो अगर आइगन वैल्यू 1 या उससे ऊपर होता है तो हम उसको ले लेते हैं। स्क्री प्लॉट भी एक तरीके का, इट्स ए ग्राफ ऑफ आइगन वैल्यू का ग्राफ होता है, जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि फैक्टर्स की लोडिंग कितनी है या फैक्टर्स कितने इसमें इमर्ज कर रहे हैं। ये सब आप फैक्टर्स को करके स्क्री प्लॉट को देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इट्स ए
graphical representation of the factors, the contributing, the large factors. Now the factor loading. Factor loading is a very important concept while discussing the factor analysis. A factor loading is calculated for each combinations of variable and extracted factors. Because factor loading, this gives the pattern of variables which are likely to be explained by which factors. Means how the variables are correlated and what amount of variance is calculated. So factor loading is a, you can say, it's a coefficient of correlation between the component means the factor, and the variable. So this is a concept. The higher the correlation coefficient, higher the factor loading. So the larger the number, the more likely it that component underlies that behavior. It means that this factor is contributing very significantly in that particular variable. So from this point of view, factor loading is also important concepts. Now again a very important point is that how you can calculate the percentage of variability. If you will square the factor loading of a variable, means factor loading जो भी आया हो, अगर आप उसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये बताता है कि परसेंटेज वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन्ड बाय दैट फैक्टर इन दैट वेरिएबल, कि इस पर्टिकुलर जो आपके लिस्ट लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं, इस फैक्टर में कितना परसेंट वेरिएंस इस फैक्टर से आ रहा है. नॉर्मली जो फैक्टर लोडिंग हम लोग लेते हैं वे 0.7 इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रोटेशन. रोटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. जब आप फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो रोटेशन ये करता है कि जितने भी क्या करता है, मैक्सिमाइजेस द हाई आइटम लोडिंग एंड मिनिमाइजेस द लो आइटम लोडिंग. अब जैसे मान लीजिए इसको हम इस तरीके से कह दें आपको कि एक मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मान लीजिए कि सपोज करिए फ्रूट्स का ही ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप, और सब इधर उधर फैले हुए हैं. अब आपको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो पा रहा है कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं. मान लीजिए जो ऐसे भी हो जो आप नहीं देखे. अब अगर एक टाइप के फ्रूट्स को आप एक जगह इकट्ठा करके तो आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि these are the groups which are placed in that particular place. या मान लीजिए डिफरेंट वेराइटी के लोग हैं, डिफरेंट अलग अलग लोग खेले गए. अब उनको अगर आप एक किसी पॉइंट पे एक तरीके से ग्रुपिंग में, तो यहाँ पर भी जब आप रोटेशन करते हैं, रोटेशन क्या करता है, ये जो हाई आइटम लोडिंग है उनको एक साथ करके और मैक्सिमाइज करता है, और जो लो आइटम लोडिंग है उनको रिड्यूस करता है, उनको कम से कम करता है. रोटेशन से क्या होगा कि ये आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है और सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन दे देता है. तो इसलिए रोटेशन is also a very important and very useful process and steps in order to carry out the factor analysis. अब जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है कि कंपोनेंट मान लीजिए ये वेरिएबल थे आपके, ठीक है. अब इसमें 3 फैक्टर इमर्ज कर गए, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3. अब इसमें कम्युनिटी हमने बताया था कि वेरिएंस कितना कैलकुलेट कर रहा है वेरिएबल 1. तो वेरिएबल 1 को अगर आप देखें, हमारा एरो दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है. दिख रहा है ना. अब जैसे सपोज करिए वेरिएबल 1 की बात करें
तो इसके जो कम्युनिटी वेरिएंस क्या आएगा 0.198, 0.805, 0.061, ये 69% वेरिएंस को लीड कर रहा है वेरिएबल 1 वेरिएबल। इस तरीके से आप एक एक वेरिएबल के वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आइगन वैल्यू टोटल कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसमें अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो हम बताए थे आपको आइगन वैल्यू मिल जाती है कंपोनेंट 1। अब कंपोनेंट 1 की आइगन वैल्यू अगर आप देखें तो इसको स्क्वायर कर दिए 0.198, 0.173, ये सब कैलकुलेट करके करें तो आपको 3.36 आया, क्योंकि ये टोटल 9 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टेस्ट है आपके, 9 इसमें वेरिएबल है, 9 से आपने डिवाइड कर दिया। तो जो पहला कंपोनेंट है ये टोटल वेरिएंस के 37.3% को इफेक्ट डाल रहा है। दूसरा कंपोनेंट कितना डाल रहा है 18.6%। तीसरा फैक्टर 11.3%। तो कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट 1 हो गया जो फैक्टर 1 हुआ। दूसरा हुआ वो फैक्टर 2 हुआ, तीसरा हुआ ये हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में इतने। Yes, sir. अब ये जैसे स्क्री प्लॉट भी जैसे 3 फैक्टर इमर्ज किए, तो जैसे ये पहला फैक्टर हुआ, ये दूसरा फैक्टर, इसमें साफ साफ पता चल रहा है। और ये देखिए ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। अब अगर हम बैक जाएं तो आपको पता चल जा रहा है ये। अब लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो उसमें सब एक ही स्लोप की तरह से चल रहे हैं, इसमें कोई आपको विशेष अंतर नहीं मिल रहा है। सातों फैक्टर में लगभग बराबर बराबर ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इनको अगर आप देखें, ये देखिए आ गया ना, ये लगभग 0 के बराबर आ गया है, मतलब 0.5 और इसके अंदर अंदर आ गए, 1 में कोई नहीं आ रहा है। अब तो 1 के अंदर अंदर देखा जाए तो ये 2 ही फैक्टर इमर्ज कर रहा है, एक ये और एक ये भी 1 में नहीं आया है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन फैक्टर एनालिसिस। जो अभी जितने हम कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो लगभग आपको उसके स्टेप्स के बारे में पता चल जाएगा। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस। द फर्स्ट स्टेप्स, द कोरिलेशनल मैट्रिक्स फॉर ऑल द वेरिएबल means to compute to calculate the correlation matrix। पहला स्टेप्स ये है। दूसरा स्टेप्स क्या है, फैक्टर एक्सट्रैक्शन। यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द फैक्टर्स, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर इमर्ज किए। थर्ड स्टेप्स है कि फैक्टर जब आइडेंटिफाइड हो गए उनका रोटेशन करना पड़ेगा कि जो हाई लोडिंग या हाईली कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना, और जो लो कोरिलेटेड या लो लोडिंग के फैक्टर है उनको मिनिमाइज करना। ये फैक्टर रोटेशन का वर्क है, फंक्शन है। दिस इज द थर्ड स्टेप्स। द फोर्थ स्टेप्स is to make the final decision about the number of underlying factors. What are the factors underlying in the particular set of variable? You will have to name those factors. What are the factors? So these are the 4 basic steps in order to conduct the factor analysis. So first step is the correlation matrix. What you will have to do, generate a correlation matrix for all the variables, and you will have to identify the variables not related to other variable. If correlation between variables are small, it means that it is not appropriate to carry out factor analysis. So correlation coefficient greater than 0.3 is in absolute value are indicative of acceptable correlation. So visually the correlation matrix will give you
the appropriateness of the factor model. So first step is to calculate the correlation matrix and all these things. While you are calculating the factor analysis, because factor analysis is a very scientific and very highly sophisticated statistical tool, so it is not only based on the visual appearance or not only based on your subjective experience. Everywhere it is well specified and well defined, cutoff and measures are given, and you will have to calculate this. So once you have calculated the correlation matrix, you will have to calculate the sphericity uh, test of Bartlett. What is this? This test, sphericity, if it is large and associated with significance level is small, it is unlikely that population correlation matrix is an identity. So you will have to see, because if it is large, then identity cannot be rejected. It means that observed significance level is large and the use of the factor model should be reconsidered. It means that the differences are there. It should not be significant. This is a very different concept. Many times it is not always necessarily that always the significance is good. Good in this, not there is no question of good or bad. It is not only that always significance is accepted for further analysis. Here it means that the entire variable set which you are using is not appropriate because a significant heterogeneity is there. So if heterogeneity is there, then how can you say that this result will apply on the same? You got my point? So here it should not be a significant. Again, the basis of the correlation matrix, you have to calculate another measures in order to measure the adequacy of the sampling size of the sample. That is the Kaiser-Meyer-Olkin measures. If the closer the KV measure to 1, in this case, higher the value will indicate the adequacy of the sample. If KMO is 0.8 or higher, that's very good, great. 0.7 is acceptable, 0.6 is mediocre, but less than 0.5 is unacceptable. If KMO is less than 0.5, it means that you should not carry out the factor analysis on this data. This is the first steps of carrying out the factor analysis. Second steps of factor analysis is the factor extraction. Now you will have to extract the factors. So primary objective of this stage is to determine the factors, means what are the factors are there, you have to identify. So जो initial stage में बनेगा कि कितने number of factors इसमें emerge कर रहे हैं in set of variables में कितने हैं. तो इसको कैसे करने, इसको करने के लिए आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मेथड को हम ज्यादातर यूज करते हैं. There are many other methods of extraction like maximum likelihood method, principal access factoring, alpha method, unweighted least squared method, generalized least square method, imaging factor. But principal component analysis is very popular and very effective method to extract the factors. So you can use the principal component analysis method in order to extract the factors.
In principal component analysis, the linear combination of the observed variable are formed because we have already assumed that the relationship between the variable is linear. So first principal component is the combination that accounts for the largest amount of variance in the sample. सबसे ज्यादा variance उसको carry करेगा. जो आपका सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट आएगा ये नेक्स्ट लार्जेस्ट अमाउंट होगा, और ऐसे धीरे धीरे आप जितने कंपोनेंट फैक्टर्स प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में इमर्ज करेंगे उनका वेरिएंस धीरे धीरे कम होता जाएगा. जैसे एक एग्जांपल हम इसमें दिखा रहे हैं कि हाउ मेनी फैक्टर्स वी नीड टू टोटल. इसमें 10 वेरिएबल्स थे. 10 वेरिएबल्स के ऊपर जब ये फैक्टर एनालिसिस किया गया तो फर्स्ट कंपोनेंट का जो आया है आपका 8.40 सॉरी 8 नहीं 3.046 आइगन वैल्यू. सेकंड की 1.84 और थर्ड की 1.01. इसके बाद 0.93 आ गया. तो हमने ये आपको बताया था कि आइगन वैल्यू अगर 1 या 1 से ऊपर होती है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. इसका जो वेरिएंस आया है उसी डेटा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो पहले अभी किए थे. इसमें 30% वेरिएंस आया, इसमें 18% आया, इसमें 10% आ गया. तो टोटल वेरिएंस जो आया है 100% वेरिएंस में से ये 3 वेरिएबल ही मिला करके 58% कर लिए. इसमें एरर वेरिएंस भी बहुत सारा होगा. तो बहुत सारे ये सब जो नीचे के वेरिएबल है इनका आप बहुत अधिक यूज नहीं हो रहा है. ये एक जस्ट एग्जांपल बता दी. तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ये 3 फैक्टर ही इमर्ज कर रहे हैं, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3. सो लेस देन 1 को हम नहीं ले रहे हैं. इसी तरीके से स्क्री प्लॉट भी देखेंगे तो आपको ये 3 फैक्टर आपको इमर्ज होते हुए दिख रहा है. 1, 2 और ये 3. ये लगभग 1 के आसपास आ रहा है, 1 के नीचे नहीं आ रहा. 1 के ये सब फैक्टर्स ये 1 के नीचे आ रहा है. तो जब आपका एक स्लोप बनने लगता है तो ये इंडिकेट कर देता है कि अब इसमें का वेरिएंस लगभग बराबर. थर्ड फैक्टर है फैक्टर रोटेशन. जैसा हमने बताया था कि रोटेशन करना होता है कि अनरोटेटेड फैक्टर्स आर नॉट वेरी इंटरप्रिटेबल. मोस्ट फैक्टर्स आर कोरिलेटेड विथ मेनी वेरिएबल्स. तो जो बताया आपको कि स्कैटर्ड होते हैं, कोरिलेशन ऑफ स्कैटर्ड होता है. तो फैक्टर्स आर रोटेटेड टू मेक देम मोर मीनिंगफुल एंड इजियर टू इंटरप्रेट. सो रोटेशन के लिए भी बहुत सारे मेथड है. डिफरेंट रोटेशंस मेथड may result in identify of somewhat different factor. आप डिफरेंट रोटेशन मेथड्स को यूज करेंगे, अलग अलग मेथड करेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर रोटेशन मेथड से सेम फैक्टर इमर्ज करे, उसमें भी वेरिएशन आ सकता है. तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है डेटा के नेचर पर, आपने कौन सा वेरिएबल लिया है, आपका एम क्या है. तो इन सब के बेसिस पे डिफरेंट रोटेशन मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं. But the most popular rotational method is the Varimax rotation methods. So by using the Varimax rotation method, you can rotate the different factors of the factor analysis. जैसे अलग और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे ऑब्लिक रोटेशन मेथड्स है, क्वार्टीमैक्स रोटेशनल मेथड है, इक्विमैक्स रोटेशनल मेथड है, प्रोमैक्स रोटेशनल मेथड्स है. तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग वेरीमैक्स रोटेशन मेथड्स को यूज करके फैक्टर एनालिसिस करते हैं. एंड द फोर्थ स्टेप्स जो है ये फाइनल डिसीजन मेकिंग स्टेप्स है. फाइनल डिसीजन अबाउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू चूज इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इमर्ज किए हैं, इसको आपको जिसको इंटरप्रिटेशन करना है. Then identify factors that have a large loading for the same factor, then plot of loading, and interpret the factors according to the meaning of the variable.
अब आपको जो फैक्टर आप आइडेंटिफाई किए हैं दैट रिक्वायर्स ए नेमिंग, आपको एक उसको नाम देना पड़ता है जो कि वेरिएबल्स के मीनिंग को भी कन्वे करे। वेरिएबल्स कौन कौन से सेट ऑफ वेरिएबल्स इसमें है उसको ये मीनिंग करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है कि नेमिंग ऑफ द फैक्टर्स, तो उसको क्या आप नाम दें जिससे कि वे फैक्टर्स आइडेंट वेरिएबल्स को इजीली एक्सप्लेन कर सके। So these are the four basic steps in order to calculate the factor analysis. यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एम आई कनेक्टेड और नॉट? हेलो? Yes, sir, you're audible. अच्छा अच्छा, बीच बीच में पता चलना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता कि ये है भी कनेक्टेड। ऐसे ही एक लेक्चर दे रहे थे, करीब 10 मिनट ऐसे ही बोलते चले नहीं, गए। सर, आप बहुत इंटरेस्टिंग आपका चल रहा है सर, और सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और हर कंसेप्ट उनका बहुत क्लियर हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं किया होगा। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब ठीक है ना, इसमें कोई जी 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 सर, अगर ठीक है सर। अभी भी हमारे पास समय है, हम इसमें कुछ अगर बच्चों को कोई डिफिकल्टी हो रही हो हिंदी इंग्लिश या जो भी, तो हम उसको भी मॉडिफाई करने का प्रयास कर सकते हैं, जी जी, क्योंकि नहीं, थोड़ा नहीं, सर, इंटरेक्टिव रहे तो ठीक है। हाँ जी 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 सर, नहीं अच्छा चल रहा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हम ट्राई किए हैं कि बहुत सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करें, और है। जी हमने जी तो पहले ही कहा कि खाली आप समझ सकते हैं कि ये है क्या, करने के लिए नहीं। चलिए जी ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं मैं। जी सर। तो अब एक आपको हम एग्जाम्पल दिखाएंगे एसपीएसएस में कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है कि इन ए स्टडी ऑन स्विमर्स, स्विमर्स जो है, जो लोग तैरने वाले हैं, उनके 11 फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को मेजर किया गया। 11 फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, कुल मिला जुला के 11 पैरामीटर से पैरामीटर्स मीन्स उसके मापदंड हो, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये अच्छा स्विमर है, या ये फैक्टर स्विमिंग में हेल्प करते हैं, स्विमर्स के लिए जरूरी होने चाहिए। इस तरीके से 11 वेरिएबल आइडेंटिफाई किए गए। अब इसमें आपको फैक्टर एनालिसिस यूज करके ये बताना है कि फैक्टर कौन, क्या हुए 11 फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, या उन 11 फैक्टर्स में कौन से फैक्टर इमर्ज कर रहे हैं, या आप इसके बेसिस पे ये जो एग्जांपल हम बनाए हैं कि एक टेस्ट बैटरी डेवलप करिए जो कि स्विमर्स के टैलेंट को स्क्रीन करने में हेल्पफुल करे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि 11 मेजर्स हैं, सभी को मेजर करना चाहिए, लेकिन फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पर भी अगर 11 आते हैं तो बात अलग है। अभी हम नहीं कह सकते, अभी हम कह रहे हैं कि 11 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो ये शायद नहीं दिख रहा होगा, अभी हम ये 11 नंबर तो दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये 11, सर दिखाई दे रहा हाँ ये 11 वेरिएबल आइडेंटिफाई किए गए हैं। अभी हम एक जगह करेंगे। तो अब जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला वेरिएबल दिया है स्टैंडिंग बोर्ड जंप, बोर्ड जंप से कितना आप कहाँ से कर सकते हैं। फिर एक दिया है शटल रन, फिर दिया है 50 मास्टर डैश, ये है ठीक है, 12 मीटर रन, एनरोबिक कैपेसिटी, वेट है, हाइट है, लेग लेंथ है, काफ का कितना ग्रिथ है, थाई का कितना ग्रिथ है, शोल्डर कितना चौड़ा है। ये ऐसे ऐसे 11 मेजर्स आइडेंटिफाई किए हैं स्विमर्स को टैलेंट को आइडेंटिफाई करने। ये सब डेटा मिल गया आपको कि ये आपने कई लोगों जो स्विमर्स हैं सबका डेटा किया अलग अलग जगह पे। ये देखिए 11 आपके आइडेंटिफाई हो गए होंगे, ये 11 वेरिएबल पे आपने एंट्री कर लिया। अब 11 पर एंट्री करने के बाद अब आपको फैक्टर, जब आप एनालिसिस करने जाएंगे तो एसपीएसएस जब आप रन करेंगे तो आपको सबसे पहले एनालाइज
आइकॉन पे जाना पड़ेगा। जैसे खुलते हैं तो फाइल दिख रहा है, एडिट दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, एनालाइज। एनालाइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा डायमेंशन रिडक्शन। जब आप डायमेंशन रिडक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके आगे दिखेगा फैक्टर। अब आपको फैक्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, पूछते चलिएगा इस स्क्रीनशॉट के लिए। इतना कर लिए। इतना करने के बाद जब आप नेक्स्ट अब आप आएंगे तो आपको ये विंडो दिखेगा। ऐसी विंडो में जब आपको दिखेंगे तो आपको ये फैक्टर एनालिसिस क्लिक कर लेंगे तो ये दिया। अब ये टोटल 11 वेरिएबल आपके यहाँ है। इन वेरिएबल को इस एरो के थ्रू आपको इस बॉक्स में ले आना होता है, क्योंकि अभी हम तो सभी वेरिएबल को लेंगे कि हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके विचार से, आपकी भावनाओं से इसका कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा आपके पास बेस नहीं है, साइंटिफिक बेसिस, कि किसी को छोड़े या किसी को हटाए। इसलिए सभी 11 वेरिएबल को उठा के इसको जैसे जैसे एक को क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे, इसमें आ जाएगा, इसको करके ऐसे कर दिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद आपको करना होगा, जब वेरिएबल इसमें आ गए, अब ये सब वेरिएबल इसमें आ गए, नाउ वंस द वेरिएबल्स आर मूव टू द वे, क्लिक द डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, डिस्क्रिप्टिव दिख रहा है। इसको आप ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये बॉक्स दिख जाएगा, दैट गिव्स द कम्युनिटी, आइगन वैल्यू, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस, ये सब आपको दिखेगा। तो पूरा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसमें केएमओ, बार्टलेट, स्पेसिफिसिटी, जो हम स्टेटिस्टिक्स आपको बताए थे उसके बारे में भी दिखेगा इसमें। तो इसमें दिखेगा, अगर आपका नॉन सिग्निफिकेंट आता है 0.05 तो इज एन इंडिकेटर ऑफ वेरिएबल सजेशन फैक्टर शुड नॉट बी परफॉर्म। तो इस ये सब करने के बाद अब आप एक्सट्रैक्शन फैक्टर पर आ जाएंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पे जब आप करेंगे तो क्लिक ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ये कि कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जब आप क्लिक कर दिए, ये देखिए एक्सट्रैक्शन नीचे दिया हुआ है, ये है ना, ये नीचे दिया हुआ है। अब आप एक्सट्रैक्शन पे क्लिक किए। एक्सट्रैक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि किस मेथड से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जितने मेथड्स हमने बताए थे वो सारे मेथड इसमें दिए होंगे। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस मेथड से यूज करना चाहते हैं। अब आप मान लीजिए अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यू यहाँ पर आकर के आपको क्लिक कर देना। जब आप ये क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट अब आपको आ रहा है। उसके बाद आपको रोटेशन बताए थे, स्टेप्स याद है? पहला स्टेप्स आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स बताया जो आप पहले कर चुके। दूसरा स्टेप्स हमने बताया कि फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करना होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द फैक्टर्स, तो आप एक्सट्रैक्ट भी कर लिए। थर्ड हमने बताया कि रोटेशन भी जरूरी होता है। तो अब आप इस पे रोटेशन पे आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे रोटेशन पे तब आपको ये ऑप्शन आएगा कि किस मेथड से रोटेट करना है आप। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ज्यादातर जो मेथड है, जो सबसे इफेक्टिव मेथड है, ये वेरीमैक्स रोटेशन मेथड्स है। तो हम वेरीमैक्स रोटेशन मेथड्स पे इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करने के क्या करेंगे, कंटिन्यू के बाद आप ओके को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रोटेशन फैक्ट, पूरे फैक्टर्स रोटेट हो चुके रहे। अब रोटेट होने के बाद ये आपका
आपके पास आ गया। पहला जो वेरिएबल था ये है स्टैंडिंग बोर्ड जंप। दूसरा वेरिएबल जो स्विमर्स के लिए आया है ये शटल रन, 50 मीटर डैश, 12 मीटर रन एंड वॉक, एनरोबिक कैपेसिटी, वेट, हाइट, लेग लेंथ, काफ ग्रेथ, थाई ग्रेथ, शोल्डर विड्थ। ये हम लोगों ने जो 11 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए थे ये स्विमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उनका जितने लोगों पे डेटा किया गया तो ये उनका मीन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है उस वेरिएबल के बारे में। ये फर्स्ट स्टेज का है, ये आपके कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गए। 11 वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या क्या कोरिलेशन आएगा, ये आपको इस तरीके का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो जितने इसमें रेड से आइडेंटिफाइड है ये सभी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, बाकी जो ब्लैक है जिसको हाईलाइट नहीं किया गया है ये इनसिग्निफिकेंट कोरिलेशन उसको शो कर रहा है, इसलिए उसको नहीं किया। जैसा हम लोगों ने कहा कि 0.3 से ऊपर अगर कोरिलेशन आ रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट कर ले इसमें factor analysis में। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम इसी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। अब इस टेस्ट को भी हमने किया कि कैसर मायर ओकिन मेजर्स ऑफ सैंपलिंग एडिक्वेसी, ये भी जो है 0.68 क्योंकि 0.5 से ऊपर है तो इसलिए ये एडिक्वेट हो गया। और बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेसिटी भी सिग्निफिकेंट आ गई है 0.05 लेवल पे। So test of is less than 0.05, so the null hypothesis that all correlation variable is rejected. तो ये अब आपको हो गया कि ये भी स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा है कि दोनों ही आपको कर लेना चाहिए। पार्टलेट भी इंडिकेट कर रहा है कि डेटा अप्रोप्रिएट है एफ फैक्टर एक्सिस के लिए क्योंकि ये सिग्निफिकेंट आ गया है। और कायर मायर जो ये सैंपल की एडिक्वेसी है ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने क्या जो स्टैंडर्ड है कि 0.5 से ऊपर होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम ये 1 हो सकता है। तो ये दोनों ही स्टैटिस्टिक्स भी आपको शो कर रहा है कि हाँ यस योर डेटा इज अप्रोप्रिएट फॉर फैक्टर एनालिसिस। अब जब आप ये फैक्टर एनालिसिस उसके बाद ये हर 11 फैक्टर्स जो 11 फैक्टर्स हैं इनके टोटल ये आपकी आइगन वैल्यू पता चल रही है। दिस इज द आइगन वैल्यू। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आइगन वैल्यू 1 से जो ऊपर होगी उन्हीं को हम लेंगे और ये इनके वेरिएंसेस हैं। जैसे हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट किए थे पहले एग्जांपल जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया कि कैसे एक कंपोनेंट के आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप देखें तो इन 3 वेरिएबल जो 3 फैक्ट है कंपोनेंट, अभी ये 1 2 3 ऐसे नहीं पता चलेगा। अब आप ये मत समझिए कि जो 1 है क्या है, ये इमर्ज करेगा तब पता चलेगा। अब ये फर्स्ट 3 फैक्टर ये तो आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंगली इनको हमने कर दिया है, ऐसा नहीं कि जो आपका 1 था वही 1 यहाँ पर भी है। तो अब ये 3 फैक्टर्स जो आए हैं ये मिल करके 80% वेरिएंस को एक्युमुलेट कर रहे हैं। समझ लीजिए 11 में से 3 80% वेरिएंस इन्हीं की वजह से हो रहा है। जो अच्छे स्विमर हैं उनमें ये 3 फैक्टर बहुत अच्छा इमर्ज कर रहा है, जो अच्छे स्विमर नहीं है उनमें इन 3 फैक्टर्स में बहुत ज्यादा कमी पाई जा रही है। तो 11 के बदले अगर आप 3 से भी कर लिए, जो 3 फैक्टर आप आइडेंटिफाई करेंगे ये आपके लिए एक मेजर्स हो सकता है। लेकिन अभी क्या आया है ये तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आइगन वैल्यू के बेसिस पे आप इमर्ज करते हैं जो सबसे 1 फैक्टर है। अब ये 1 ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये 1 अभी ये मत समझिए क्या है, ये अभी बाद में देखेंगे। खाली ये देखिए कि 3 फैक्टर इमर्ज किए हैं 1 2 3 है, ठीक। ये 3 फैक्टर इमर्ज किए हैं 0.549 2.15 और ये 1।
आपके अगर स्क्री प्लॉट देखेंगे तो यहाँ भी आपको पता चल रहा है कि ये 3 फैक्टर्स ही एक्सट्रैक्ट होके आ रहे हैं ये 1 के अंदर अंदर। अब जो ये आया कंपोनेंट 1, अब इसकी ये आपके आ गए हैं कि अनरोटेटेड फैक्टर लोडिंग आपके पास आ गया है। अनरोटेटेड फैक्टर लोडिंग कि स्टैंडिंग बोर्ड जंप का ये है, शटल रन का ये है, फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट जो आए हैं उसमें इस वेरिएबल का ये कंट्रीब्यूशन है। थर्ड फैक्टर में इस वेरिएबल का ये रोल है, इतना रोल है, ये सब फैक्टर लोडिंग आ रहा है। तो हर एक 11 वेरिएबल्स के तीनों फैक्टर्स में कितना उसका इंपॉर्टेंस है, कितने वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, ये आपको अभी पता चल पा रहा है। लेकिन अभी भी अगर इसको देखेंगे ये अनरोटेटेड है। इससे देखने से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि फर्स्ट फैक्टर में जैसे हाई लोडिंग एक ये लग रहा है 0.8, ये लग रहा है, एक आपका एक ये लग रहा है, एक आपका ये भी लग रहा है 0.8। तो फर्स्ट फैक्टर में लग रहा है कि ये 3 फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। स्टैंडिंग बोर्ड जंप कर रहा है, एक काफ ग्रिथ कर रहा है और एक थाई ग्रिथ, ये 3 इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लेग लेंथ भी कर सकता है। तो ये 4 वेरिएबल फर्स्ट फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट इमर्ज किए। अगर आप सेकंड में देखने की कोशिश करें तो इसमें आपको लग रहा है कि हाइट, वेट और आपको लग रहा है कि ये 12 मीटर रन, ये फैक्टर, ये वेरिएबल सेकंड फैक्टर में इमर्ज किए। थर्ड फैक्टर में अगर आप बात करें तो आपको देखने से लग रहा है कि 50 मीटर डैश भी इंपॉर्टेंट लग रहा है और कुछ हद तक ये शोल्डर विड्थ लग रहा है, लेकिन इसका वेरिएंस बहुत कम हो गया है। तो 3 फैक्टर आपको इसमें दिख रहा है। अब अगर जब आप इसको रोटेट कर देते, फैक्टर लोडिंग्स ऑफ ऑल द वेरिएबल ऑन ईच ऑफ द 2 फैक्टर हैव बीन शोन हियर। अब ये इमर्ज किया तो ये इस तरीके से, अब आप जब रोटेट कर दिए तो ये इस तरीके से आ गया। अब रोटेशन में अगर आप देखें करेंगे तो वेट 0.9, हाइट 0.93 और लेग लेंथ, ये 3 वेरिएबल ही फैक्टर 1 में को पूरा डिफाइन कर दे रहे हैं। जो दूसरे फैक्टर है इसमें 0.9 ये कर रहा है, शटल रन कर रहा है, और ये 12 मीटर रन वॉक और एनरोबिक कैपेसिटी, ये 3 वेरिएबल सेकेंड फैक्टर को कर रहे हैं। और थर्ड बहुत वीक नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि उसका वेरिएंस कम है। लेकिन इसमें अगर देखें तो 50 मीटर डैश की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो thus the after variable version non-overlapping variable, if the variable has factor loading more than 0.7, it indicates that factor extracts sufficient variance of the variable. Thus, all those variables having loading more than 7 are more on a particular factor identified in this factor. अब अगर इसको हमने नेमिंग कर दिया, अब अगर आप देखिए तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इमर्ज हो गए आपके पास। एक हो गया एंथ्रोपोमेट्रिक कि वेट, हाइट और लेग लेंथ, ये स्विमर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इमर्ज किया। और दूसरा जो फैक्टर्स हुआ उसकी फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, जैसे आप कर सकते हैं शटल रन, 50 मीटर डैश, 12 मीटर रन एंड वॉक, ये फैक्टर इमर्ज किए। तो ये 2, इसके लिए आपको बड़ा नॉलेज होना चाहिए जिस फील्ड में आप इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जैसे ये एंथ्रोपोमेट्रिक हम लोगों ने मेजर कर दिया, ये जैसे उसके फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके, तो ये कुल मिला जुला करके 11 में से ये आपके पास 3 और 3 6 और 2 ग्रुप में आपके पास फैक्टर्स आ गए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये कह सकते हैं कि स्विमर्स के अगर हमको टैलेंट को देखना पड़े तो एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हाइट, वेट, लेंथ
लेग लेंथ कितना है, और ये उसकी फिजिकल कैपेसिटी को चेक करके हम बता सकते हैं कि कौन से लोग अच्छा स्विमिंग कर सकते हैं, कितना उसमें टैलेंट है, और बाकी 11 में से ये आप कर सकते हैं। तो ये बाद में आया। इसके बाद ये लास्ट में रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, ये इसके बारे में हमने किया है। नाउ एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इज डेटा डेटा रिडक्शन के लिए काम आता है, स्केल डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है, और ये जो साइकोमेट्रिक क्वालिटी ऑफ द मेजर्स को, जो टेस्ट आप यूज कर रहे हैं उसके इवेल्युएशन में, साइकोमेट्रिक क्वालिटी के इवेल्युएशन में भी आप फैक्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं। फिर डिफरेंस जो है डायमेंशंस, अगर आपको एसेस करना है सेट ऑफ वेरिएबल्स में से, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं फैक्टर एनालिसिस। तो ये सब कुछ जो है एप्लीकेशंस है फैक्टर एनालिसिस के। लिमिटेशंस, इसके सबसे बड़ी जो लिमिटेशंस होती है कि फैक्टर्स को नाम कैसे दिया जाए। जैसे अभी हमने दो नाम दे दिया कि एंथ्रोपोमेट्रिक एंड फिजिकल, तो नेमिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये एक इसके लिमिटेशन है। और जो फैक्टर्स नाम दें वे हो सकता है कि एग्जैक्टली या एक्यूरेटली उस वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट न करें। कई बार फैक्टर्स को का इंटरप्रिटेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जा सकता है कि वे दो तीन जगह लोडिंग उनकी हो, तो स्प्लिट लोडिंग करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके इसके लिमिटेशंस हुए। फाइनली इसको करने के लिए लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए। एक ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अगर साइज बड़ा नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन अच्छे से या ये फैक्टर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि फैक्टर एनालिसिस का रिप्लिकेशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेम सैंपल को उसी पॉइंट पे लेकर के सब कुछ करना ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक और इसकी लिमिटेशन। सो विद दिस बैकग्राउंड I finish my discussion or the lecture, and now this is open for discussion. If you have any doubt you can ask me. मैडम ये स्क्रीन शेयर ऑफ करें कि रहने दें? सर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो सर हाँ, उसमें स्क्रीन आपको शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, चलिए। एक्चुअली यहाँ पे नेट बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो इसी अच्छा, से पूछ रहे हैं बच्चे, तो अच्छा ठीक है, वो पूछ लेंगे। ठीक है। विनीता। सर आपने जो रोटेशन के बारे में बताया, तो सर उसमें आप थोड़ा रोटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे वेरी मैक्स रोटेशन है, प्रोमैक्स रोटेशन है, वो कब किस कंडीशन में यूज करना चाहिए हमें? ये जो है ना, ये देखिए वेरी मैक्स ही मोस्ट यूजफुल है। जी ठीक है, सर। डिफरेंट मेथड्स दिए हैं, वो उनकी अलग अलग कंडीशन है। नॉर्मली हम जो साइकोलॉजी में यूज करते हैं, क्योंकि देखिए फैक्टर एनालिसिस तो सभी लोग यूज करते हैं, दूसरे दूसरे डिसिप्लिन के भी यूज करते हैं। बिहेवियरल साइंसेस और सोशल साइंसेस में हम जो इसके लिमिटेशंस हैं, अब आपको एक एक के लिए जब तक आप पूरा डिटेल मेथड नहीं पढ़ेंगे, उनकी मेरिट और डिमेरिट अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर के आप ये कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मली हम 99% टाइम्स जब हम बिहेवियरल साइंसेस और साइकोलॉजी में फैक्टर एनालिसिस करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए आप एकदम डेड श्योर मानिए कि आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से हम फैक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वेरीमैक्स रोटेशन मेथड से हम उसका रोटेशन करा देते हैं। क्योंकि आप मैनुअली तो कर नहीं रहे हैं, आप तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उसको इसमें आप इसको नहीं कर पाते। वेरीमैक्स रोटेशन जो स्टेप्स को यूज करता है, इसमें इस रोटेशन के पर्पस को फुल्ली सेटिस्फाई करने के का एफर्ट है ये। इसमें डिफरेंट डिग्रीज और कोरिलेशन कई फैक्टर्स को एक साथ लेकर के ये रोटेट कराता है।
ओके सर। सर इसके अलावा सर आपकी जो एक रिपोर्टिंग की स्लाइड थी जिसमें एनालिसिस के बारे में के बाद मतलब आपने कैसे रिपोर्टिंग करनी है इसके बारे में बता रहे थे, तो वो सर उसको एक बार शो करके सर आप उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं उसमें मेनली यही बात थी कि जो रिपोर्टिंग में जैसे आपको नेमिंग कैसे करना है ना। नेमिंग करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसमें कि फैक्टर्स जो इमर्ज किए, जो स्ट्रक्चर कैसे इमर्ज किए, हम उसी स्लाइड को आपको कर देते हैं। रिपोर्टिंग एनालिसिस क्या है कि द वे इट परमिट्स द इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन, आपको इंटरप्रिटेशन करना है फैक्टर एनालिसिस का। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन मेड बाय द कंडक्टिंग। जो व्यक्ति फैक्टर एनालिसिस कर रहा है, ये उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है ना, सैंपल साइज क्या है, कौन सी टेक्निक सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट वेरिएबल्स क्या थे, इन सब को आपको उसमें रिपोर्ट कर देना पड़ता है। एक तो कि किस किस बेसिस पे आपने किया, ठीक है, एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि तभी आदमी समझ पाएगा। जैसे अभी हमने किया तो उसमें आपके स्टेटिस्टिक्स क्या आए, क्या नहीं आए, आपके केएमओ क्या थे, बार्टलेट स्पेसिफिक टेस्ट का इंडेक्स कितना था, सैंपल साइज कितना है, ठीक है, किस टेक्निक से आपने किया, ये सभी चीजें रिपोर्ट में आ जानी चाहिए। सो इंफॉर्मेशन अबाउट द एनालिसिस इटसेल्फ should include the method of factor extraction, community estimate use, the criteria क्या आप यूज किए नंबर ऑफ फैक्टर्स और रोटेशन के लिए, ठीक है। अगर आप डिफरेंट क्राइटेरिया यूज किए तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपने आइगन वैल्यू 1 के बदले आप कुछ ज्यादा ले लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप आइगन वैल्यू 1 क्यों ले लिए, क्यों क्यों कम किया, क्यों ज्यादा किए, ठीक है। फिर मेथड ऑफ रोटेशन क्या किए उसको बताना पड़ेगा। फिर उसकी फैक्टर लोडिंग्स जितनी आई रोटेटेड फैक्टर्स की, फाइनल कम्युनिटी, आइगन वैल्यूज के लिए, फिर उसके जो है प्रपोर्शन, टोटल कॉमन वेरिएंस में कितना एक्सप्लेन कर रहा है एक एक फैक्टर, ये सभी जो अभी हमने जितने आपको पॉइंट्स दिखाए थे, जितने आपको पीपीटी स्टैटिस्टिक्स करने के बाद, वे सभी आपको ऑलमोस्ट इसमें आपको इंटरप्रिटेशन में करना पड़ता है। इसीलिए हमने इसको स्किप किया कि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बताइए। जी।